So hello everyone, I'm with Dr. Paras and he is also an FMG. And so first of all, introduce yourself. Hi, my dear friends. This side Dr. Paras, your FMG mentor and widely known as Chantingwala. Chanting wala. हाँ. So I did my graduation from China. After that, I did my internship from Delhi, and after that, I started this mentorship and teaching program. So being in touch with students from past 3 to 4 years, and after that, I just joined my PG residency as ENT resident. So that was all about my journey Okay. part. So सर आपको अभी कितना टाइम हुआ है पीजी रेसिडेंसी स्टार्ट किए हुए? Just joined few days back only. It's ओके. very fresh start. अच्छा, कौन से स्टेट में है सर फिर वो? UP, Uttar यूपी में. Pradesh. अच्छा. हाँ. ओके. सो सर अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम्म, पीजी वाले रिलेटेड कि हम्म, सर अब जो बच्चे एफएमजी पास हो गए हैं हम्म. उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए पीजी का प्रिपरेशन को लेके? अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए कुछ टाइम बाद इंटर्नशिप के साथ, या एक साल बाद इंटर्नशिप के बाद एक साल ड्रॉप लेके 6 महीने ड्रॉप लेके फिर प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए? See what I feel ना, FMGs दो तरीके में बांट लीजिए आप. सबसे पहले तो हम्म. एक FMG का तबका है जो कॉलेज के सेकेंड ईयर से दे स्टार्ट स्टडिंग. हम्म. ठीक है. For them they are into regular touch with the studies and they are into deep wala thing, है ना. हम्म. And they just come here, they just solve MCQs, they are more into self studies, they crack the exam. Okay. Second set of students are there who are less into studies. ठीक है. To be honest we say, and they come here and they join coaching. In the 6 month they crack the exam. हम्म. So for both of them my opinion is different. Sir, if you are like fully covering the syllabus from your college days only, हम्म. and you are coming here and you're just solving tests, etc., and you're knowing the core topics of the FMG, you are cracking the exam, then you guys, along with your internship, can like stick to those notes only. Plus, you guys should solve MCQ. Like internship is divided very nicely. हम्म. Like 60 days you will be posted in the obs and gynae department, 60 days you will be posted in the medicine, and this and short subject like anesthesia you will be getting posted for at least 15 days. So your target should be daily solving the MCQs. Just go through the notes quickly, and once you go through the notes quickly you just solve more focus on the MCQs with this plus GTs. So you will see your score will improve because you were in your college days you did a lot of hard work regarding your main theory classes. So for you people there should be a MCQ practice more. But the second set of people who have joined the FMG coaching and they have rushed everything in 6 months. So, my dear friends, you try to cover the theory part more in the internship along with the MCQs. Okay. People who have studied fully in their college days, Hmm. they should more focus on the MCQs and GTs. And students who have just prepared for 6 months, you should more focus on the theory. Theory को थोड़ा stretch करिए. Theory को stretch करने के साथ में, you should focus on MCQs. But later on, my personal suggestion to you guys, कि don't go for job directly, because I myself felt this thing. Once you start earning, then your interest for studies gradually decreases, and that is something which is worst. Okay. I must say, if you guys are well sounded, like family support is always there with all of us by God grace, है ना. So you guys should take proper drop if you are able to manage with internship, which is very hard. I know this personally, this thing, but you guys should take drop rather than going for a job which is JR ship, SR or JR ship or any other thing you are doing. Go with the proper syllabus once again and give yourself at least 1 year for the stretching of the theory. So that, in my opinion, these are the two different perspectives for the people who studied from the college, and other ones are who just studied for the 6 months. ओके. सो सर अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे तो हाउ डिड यू मैनेज योर, आपने सर पढ़ाई भी यहाँ पर इतने सारे बच्चों को आप पढ़ा भी रहे थे, एंड उसके साथ साथ यू डिड यू डू योर इंटर्नशिप अलोंग विद दैट, और मतलब यहाँ कोचिंग वगैरह में आप पढ़ा भी Yes, रहे थे? when I started my like teaching wala thing na, it हाँ. was all of sudden in the COVID time na. हम्म. In the COVID time, so I started that along with my internship only. So Hmm. initially it was very hectic.
बिकॉज आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा और इंटर्न्स को तो वैसे ही इधर उधर, बट इन द एंड ना, लाइक माइन थिंग्स वर अबाउट द रैपिड रिवीजन, रैपिड रिकैप वाला, सो आई प्रिपेयर्ड द नोट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम यू हैव टू गिव इन योर लाइफ, आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि अलग से कुछ थोड़ी पहचान बन जाए। तो फॉर दैट एक्स्ट्रा थिंग आई डिड लाइक एक्स्ट्रा आवर्स इंटर्नशिप के बाद भी, एंड नो वन इज देयर टू लिसन योर एक्सक्यूजेस। भाई आपको आकर के क्या पढ़ाना है, क्या करना है, इस चीज का एक्सक्यूज आप इंटर्नशिप में नहीं दे सकते हो। वहां के प्रॉपर आवर करने के बाद tirelessly you have to do that thing. So I was managing along with my internship. I used to come, I used to prepare notes, and sometime I used to manage my duties accordingly. So things all, you should know basically about the balance. Balance is all about the work and how to settle the things. That is also a very key thing right here. कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने चीजें सेटल कैसे करनी, मैनेज कैसे करनी, अपने आने वाले 10 दिन कैसे मैनेज करने, आपकी ड्यूटी यहाँ लगने वाली है, फिर आप किस तरीके से अपने सीनियर से किस तरीके से एक्स्ट्रा करके किसी तरीके से मैनेज करके आप टाइम को निकालना, दैट इज ऑल्सो आर्ट। तो ये सब चीजें रोल प्ले करती है। इफ यू आर वेरी इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करनी है, सब चीजें, तो आपको फिर नॉर्मल तरीके से ही जो प्रोसेस चल रहा है, यू हैव टू गो विद दैट। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग तो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू प्ले स्मार्ट है। आपको कहीं ना कहीं आपके पीजी से सबसे बोल के रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके यू हैव टू फाइंड द टाइम। सो आई डिड दैट थिंग। ओके। और सर अब आप जब यहाँ पढ़ा रहे हो तो यू आर नोन एज चैंटिंग वाला, मतलब ठीक है। तो सर आप जो चैंटिंग कराते हैं, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द फ्यूचर व्यूअर्स जो अभी फिर यहाँ आके गौतम नगर में क्लासेस लेते हैं, या आपका पूरा चैंटिंग वाला का बहुत सारा वीडियोस तो यूट्यूब में भी फिर मैंने भी देखा है, मेरे दोस्तों ने बहुत वीडियोस आपका देखा था चैंटिंग वाला नाम से। तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हो कि उनको कब से ये आपका जो वीडियोस है वो कब से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई का, एंड इज योर वीडियोस इनफ फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट? ओके, गुड क्वेश्चन। आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द चैंटिंग। पहले वर्ड चैंटिंग का मतलब क्या है? चीजों को याद करना, जो बार बार बोल करके, ठीक है। किन चीजों पे फोकस ज्यादा मैं करता हूं या मैं करवाता हूं बच्चों से? माई चैंटिंग इज बेस्ड ऑन ऑल पीवाईटीज। मैं लास्ट 8 से 9 एफएमजी एग्जाम्स को चैंटिंग कराता आ रहा हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर एग्जाम में मैं जो भी आपके एमसीक्यू एग्जाम में आ रहे हैं, जिन टॉपिक से एमसीक्यू एग्जाम में आ रहे हैं, सो आई मेक समरीज, आई मेक ट्रिक्स ऑफ दोज टॉपिक्स। इसको कब देखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या ये सफिशिएंट है? सिर्फ यही सफिशिएंट है? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का जवाब मतलब मैं बहुत अच्छे से देना चाहूंगा, एंड यू पीपल ऑल्सो शुड लिसन इट। सर चैंटिंग कब देखनी चाहिए? चैंटिंग इज ऑल अबाउट द पीवाईटीज। मैंने 6 दिन की मेडिसिन की क्लास लगा ली या सर्जरी की क्लास लगा ली, मैंने पूरा पढ़ लिया, एंड आई नो 70 to 80% ऑफ आवर एफएमजी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे लिए। 6 दिन इतनी किताब भर गई, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इन द एंड वी आर गिविंग ए स्क्रीनिंग एग्जाम। मैं सिर्फ एफएमजी एग्जाम की बात कर रहा हूं। मुझे उसमें यह पता होना बहुत जरूरी होना चाहिए कि पिछले 8 से 9 एग्जाम में, पिछले 8 से 9 एग्जाम के अंदर मेरे टॉपिक्स कहां से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स के अंदर कौन से वर्ड हैं जो मुझे मस्ट नो होने चाहिए। तो जब आप एक बार रेगुलर क्लास को अटेंड कर लेते हो, उसके बाद आप चैंटिंग अटेंड करते, जब जैसे 6 दिन की क्लास को अगर मैं बोलूं सर्जरी को, मैं उस सर्जरी की क्लास को, 6 दिन की सर्जरी की क्लास को मैं 6 घंटे में समराइज कर दूंगा। तो चैंटिंग आप तब देखिए, तब आपको बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ चैंटिंग आपको मैं बता दूं 40 घंटे की होगी, ओके, पूरी कंप्लीट। ओके, और 19 सब्जेक्ट्स पूरा, 19 सब्जेक्ट पूरे 40 घंटे में समराइज है, ऑल पीवाईटीज, ठीक है। अब वो सफिशिएंट है? कैसे सफिशिएंट हो सकते हैं आप मुझे बताइए। सफिशिएंट तो आपके पूरी किताब भी नहीं, जब तक आपको आती नहीं है। आप समझे नहीं बात को? आपको जब तक वो चीज बहुत अच्छे से मास्टर नहीं करी जाती, अप्लाई करने नहीं आती। और चैंटिंग सफिशिएंट नहीं है, बट चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर योर सब्जेक्ट, विच मेक्स योर सब्जेक्ट वेरी इजी। इन द एंड जब हमारे पास एग्जाम से पहले 19 के 19 सब्जेक्ट के नोट्स इतने सारे होते हैं, सो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, समझ नहीं आता कौन सा वाला आप नोट पकड़ के इसको जल्दी जल्दी खत्म करें, बिकॉज एग्जाम से पहले एक ही टारगेट होता है, जल्दी से नोट्स खत्म हो जाए।
उस जल्दी के लिए, उस टाइम के लिए चैंटिंग बहुत हेल्पफुल रहता है। Okay. और जब आप चैंटिंग पढ़ते हो, चैंटिंग के साथ में आप मेन नोट से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर उसके साथ, बच्चे बहुत सारे ऐसा भी करते हैं, मेन नोट से जो एक्स्ट्रा पॉइंट, जो कहते हैं ना 20th नोटबुक का हाँ. कॉन्सेप्ट है, वो आपका चैंटिंग सॉल्व करता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर योर रेगुलर क्लास ओनली। डायरेक्टली jumping onto the chanting might not help you that much, but definitely after your class, if you are watching regular class, if you are watching chanting, and you can take feedback from thousands of students. Even I have, मेरे फोन हमेशा भरे रहते हैं, जब रिजल्ट आता है बहुत अच्छा लगता है, जब दूर दराज से बच्चे थैंक यू बोलते हैं। मैं उनको जानता भी नहीं होता हूँ, बट एज अ कर्टसी टू देयर मेंटर टीचर, वो जरूर एक थैंक्स का मैसेज जरूर लिखते हैं कि सर एक भी वीडियो अगर काम आई हो किसी के लिए, तो मेरा तो लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया वहीं पे। So this was whole story to tell you about chanting useful कब है, कब उसको यूज करोगे, सही तरीके से यूज करोगे तो आपको आपका एग्जाम में जरूर काम आएगा। और फिर ये जो आपके वीडियोस हैं, ये कोई स्पेसिफिक कोचिंग में रहते हैं या फिर आप यूट्यूब में भी वो अवेलेबल है? फ्रेश वीडियोस मेरे सारे के सारे मेडवे के अंदर है। हाँ. मेडवे ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव क्लासेस, सब जगह पे आपको फ्रेश कंटेंट मिलेगा। और यूट्यूब पे भी जो मैं लाइव आता हूँ वो मेडवे की तरफ से ही आता हूँ। ओके. हाँ। तो आपका कोई अलग से चैनल का नाम नहीं है मतलब? मेरा अलग से भी चैनल है चैंटिंग वाला करके, हाँ. बट फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आई डिडंट पोस्टेड एनी लाइव सेशन देयर, Okay. बट आई एम डूइंग लाइव सेशन मेडवे। सो इधर वे और एक ही बात है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, कंटेंट तो कंटेंट है। हाँ, बट YouTube पे है. अपग्रेडेशन, हाँ यूट्यूब पे भी है, बट अपग्रेडेशन आती रहती है, तो बेटर होता है कि हाँ लाइव सेशंस के तौर पे हम अपने बच्चों को यहाँ मेडवे में देते हैं वो चीजें। ओके. तो सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हमारे लिए पीजी प्रिपरेशन कितना डिफरेंट है, लाइक एक तो पहला कंपैरिजन मैं करूंगा कि एफएमजी का जो हमने अभी प्रिपेयर किया, हाउ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट इज फॉर स्टूडेंट्स हु पास एफएमजी टू प्रिपेयर फॉर पीजी, एंड कंपेयर टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स कितना डिफरेंट रहेगा फॉर एफएमजीज? आप भी एफएमजी है, मैं इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व ना, कि एक तो मैंने बोला कि कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, चलो उसको हटा देते हैं, हम बात करते हैं पीजी की कोचिंग 7-8 महीने की होती है, एफएमजी की 6 महीने की होती है। व्हाट आई पर्सनली सॉ, ऑब्जर्व, बीइंग अ पार्ट ऑफ कोचिंग आल्सो, सर अगर मेडिसिन की क्लास 6 दिन की एफएमजी में हो रही है, तो 6 ही दिन की पीजी में है वो क्लास। 6 दिन की सर्जरी अगर एफएमजी तो 6 ही दिन की है, ईएनटी 3 दिन की है तो 3 ही दिन की है। तो कंटेंट वाइज 10-15-20% से ज्यादा अंतर नहीं है। बट हमें टाइम कम मिलता है उस चीज को पढ़ने का, उनको टाइम ज्यादा मिलता है उस चीज को पढ़ने का। वो 10 से 15% कंटेंट, क्योंकि पीजी एग्जाम साल में एक बार होता है और एफएमजी का 6 महीने में हो जाता है, तो उस कंटेंट को पढ़ने का टाइम हमें कम मिलता है और पीजी वालों को ज्यादा मिलता है। इतना ही डिफरेंस है। बाकी आप कंटेंट वाइज, मैंने नोट्स डेज वाइज आपको कंपैरिजन बता दिया कि उतने ही डेज की क्लासेस पीजी के अंदर हो रही है, उतने ही डेज की क्लासेस एफएमजी के अंदर होती है। तो अगर आप मान के चलो कि सेम डेज की क्लास है, तो कंटेंट में कितना अंतर आ जाएगा? उतने ही घंटे दिन में होते हैं, उतने ही घंटे टीचर पढ़ाता है, सेम चीज है, तो फिर अंतर 10 से 15%। और कुछ फैकल्टीज का मानना है कि नाउ विद द एडवांस ट्रेंड वो लोग पीजी एफएमजी सेम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि कुछ भी कम पढ़ाना चाहिए एफएमजी स्टूडेंट को, तो वो बढ़ चढ़ के जो है बच्चों को उतना ही बराबर पढ़ा रहे हैं आज की डेट में। अच्छा. आंसर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए कि व्हाट शुड बी द स्टडी प्लान फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जून या जुलाई एफएमजी 2025? जो अभी मेरे दोस्त सारे के सारे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुलाई 2025, दो चीजें हैं। पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट द सेल्फ स्टडीज एंड द कोचिंग वाला थिंग। सेल्फ स्टडी आपने तभी करनी है जब आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। सेल्फ स्टडी नीड डिसिप्लिन, इमेंस डिसिप्लिन आपको चाहिए। वरना कोचिंग का हिस्सा होने के मैं आपको फायदे बताता हूं। एक, अगर आप कोचिंग के साथ जुड़ते हो, तो कोचिंग में जैसे 5 दिन की क्लास लगी है, मैटर है कि रिपीटर है, रिपीटर सोचेगा मैंने क्यों बैठना है, मैंने तो पढ़ रखा है। बट कोचिंग में क्या है, जैसे सारे सब्जेक्ट तो आपने कुछ तो छोड़ रखे होंगे, तो आप उन सब्जेक्ट को दोबारा करना चाहोगे, तो कोचिंग वाले ने आपको 100 दिन का शेड्यूल दे दिया एडवांस में कि मेरा इस महीने में ये सब्जेक्ट होने वाले, ये होने वाले। और सिर्फ क्लास नहीं होती कोचिंग में, कोचिंग के अंदर टेस्ट भी होते हैं, कोचिंग के अंदर और रिवीजन सेशंस भी होते हैं, चैंटिंग सेशंस भी होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है चीजों का और सारी चीजें जो है ना डिजाइंड है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी का मोड चूज कर रहे हो, मेक श्योर यू आर चूजिंग सम टेस्ट सीरीज, है ना, कोई टेस्ट सीरीज है, उसमें ये डिजाइन होना चाहिए कि डेडलाइन होनी चाहिए कि हाँ 15 दिन बाद मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इसका टेस्ट देना है तो देना है।
20 दिन बाद मुझे मिनी मॉक देना है, 20 से 25 दिन बाद मुझे मॉक देना है, तो वो चीजें आपका कहीं पे पेन डाउन होनी चाहिए एंड देयर शुड बी अ पर्सन जिसको आप अकाउंटेबल हो। वो अकाउंटेबिलिटी आप अपने दोस्त के साथ भी रख सकते हो, वो अकाउंटेबिलिटी आप पेरेंट्स के साथ भी रख सकते हो, किसी के साथ भी जिसको आप बता सको कि मैंने अब ये इतना कर लिया है सर, अब मुझे बताइए कि और मैं क्या करूं। तो ये एक एडवाइस है। और अगर आपसे इतना नहीं हो पाता है तो कोई भी कोचिंग आपको जो अच्छी लगती है आप ज्वाइन करिए, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा। और नहीं, अब तो कोचिंग के अंदर सीओबीटी का भी ट्रेंड आ गया है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लग गए, तो हाँ उससे काफी ज्यादा जो एंग्जाइटी का इशू फेस करते थे बच्चे, तो वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया आज की डेट में। ओके। हाँ सर, मैंने सीबीटी एक भी नहीं दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक भी नहीं दिया था। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि अब जो तुम जीटी दे रहे हो घर बैठ के वही सीबीटी है। यू उनका मानना ये था, पास हो गए थे, उनका मानना ये था कि यू डोंट हैव टू गो समवेयर, जो इतना दूर तुम कहीं जा रहे हो सीबीटी देने के लिए, मतलब। तो मैंने एक भी नहीं दिया था। बट अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू गिव अ सीबीटी, एंड वो जीटीज जो घर पे बैठ के देते हैं उससे डिफरेंट है नहीं है? सी व्हाट आई टेल यू, हर तरीके का बच्चा है। हम्म, आपने घर रह के पढ़ाई करी, आप हाँ सेल्फ डिसिप्लिन थे, आपने कर ली। हाँ मोस्टली पीपल आर नॉट। इवन इफ आई से माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो नॉट। आई नीड हम्म, समवन, आई नीड मेंटर जो मुझे गाइड करे। फोन से दिया हुआ और कंप्यूटर पे दिए हुए में फर्क कितना है मैं आपको बताता हूँ। एक रियल टाइम एग्जाम फील, मेरे को फोबिया, मेरे को सारी चीज आती है, बट जब मैं एग्जाम में जाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। हाँ तो वो डर खत्म करने में सीओबीटी का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप कोचिंग में, जैसे हमने 5 सीओबीटी कराए, तो 5 सीओबीटी के बाद बच्चा थोड़ा फियरलेस था कि ऐसा ही सा कंप्यूटर आएगा, ऐसे हाँ ऐसे करके एग्जाम क्लिक करना है। हाँ रिजल्ट भी उसी पैटर्न पे देते थे, टाइमिंग भी उसी पैटर्न पे लगा रखी थी। अगर कुछ लोग नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे, तो अगर वो उतनी ही ईमानदारी से वो पेपर दे रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका उसी से कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा है, बट पीपल हु आर फेसिंग इशू कि नहीं इतने घंटे बैठा नहीं जाता है घर पे, तो सीओबीटी में क्या होता है, आपकी पूरी क्लास एक साथ एग्जाम दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पुश रहता है, कंसिस्टेंटी बनी रहती है। अगर वही कंसिस्टेंसी आप घर पे मेंटेन कर पाते हो तो वेल एंड तो गुड, सही नो है। हार्म इन दैट। ठीक है। ओके। एंड लास्ट थिंग, जैसे अभी हम चैंटिंग वाला और आप जो चैंटिंग कराते हैं उसका बात कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कब से स्टार्ट करना चाहिए? आपका वीडियोस या आपका जो चैंटिंग है वो अभी से कोई स्टार्ट करे, या एकदम एंड में एज अ रिविजन सोर्स उसको देखे? सी, जैसे आप दो दो तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप पूरा कोर्स खत्म कर लो, लास्ट में एज अ रिवीजन सोर्स यूज करो, रिवीजन के साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उस चैंटिंग में लिख लो। दूसरा ये है कि जब आप 2-3 सब्जेक्ट का बर्डन लग रहा है, अब कैसे रिवाइज होगा, गो विद द उस चैंटिंग, 7-8 घंटे में खत्म करके एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के अभी से 20th नोटबुक को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करोगे तो जैसे अभी आपने 2-4 पॉइंट ऐड करे हर टॉपिक के अंदर, या कुछ टॉपिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी ऐड करेगी, ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन के अंदर टॉपिक था जो मेरे नोट्स में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये काम का लग रहा है, या कोई ऐसी ट्रिक थी जो नोटबुक में नहीं थी, उसको लिख सकते हैं। तो अगर आप अभी से भी करने तो नो हार्म, एंड में भी करोगे नो हार्म, अभी से करोगे तो वो चीज 2-3 बार हो जाएगी, और उसमें एड ऑन काफी करने की आपकी वो ना चॉइस आपके पास रहेगी, काफी चीजें एड ऑन करने की। लास्ट में उतना आप एड ऑन नहीं करना चाहोगे, बट अब अगर अभी से देख करके उसमें एड ऑन करना चाहोगे तो अभी काफी सारी चीजें एड ऑन हो सकती है उसके अंदर। सो वो एक फायदा रहेगा अभी करने का एज कम्पेयर टू द इन द लास्ट वाला थिंग। ओके। और सर, जब मेरे दोस्त लोग को कल मैंने बताया कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, तो उनका ये था कि ये सर से ज़रूर पूछना कि हाउ व्हाट मेक्स यू सो एनर्जेटिक ड्यूरिंग द क्लासेस, एंड पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट्स, कि आप हमेशा पॉजिटिव, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा बोलते हो कि पॉजिटिव रहना है, हम पास होंगे, वैसा करके आप सबको, बच्चों को भी बोलते हो कि वी विल पास। तो हाउ, व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दो स्टफ कि मतलब एकदम पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाना है? मेरा एक कोर मंत्र है, हम्म, उम्मीद। हम्म, सामने वालों को आपसे उम्मीद है। हम्म, जब भगवान ने आपको जिंदगी में कोई पर्पस सबको दिए हुए है, संसार जो है सबसे चल रहा है, आप म्युनिसिपैलिटी वालों से लेके डॉक्टर्स, फौजी, सब लोग संसार चला रहे, तो आपको भी एक जिम्मेदारी ऐसी सौंप दी कि जैसे मेरे को बच्चे पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो जब मैं पढ़ाने के लिए स्टेज पे चढ़ता हूँ तो सामने बैठी हुई बच्चों को उम्मीद है कि ये आदमी कुछ ऐसा बताएगा जिससे मेरा भविष्य सुधर जाएगा। हम्म, एक तो ये कारण है एनर्जेटिक रहने का। दूसरा कारण एनर्जेटिक रहने का ये है कि जैसे मैं हमेशा एक टर्म यूज करता हूँ एफएमजीज के लिए, ब्रॉड माइंडेड मेडिकोस, कलरफुल एफएमजीज। तो एक जो वाइब मैच होती है ना ड्यूरिंग द हम्म, क्लासेस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई चीज बोल रहे हो और आपके सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए एंड यू वाइविंग वेरी वेल, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई रहती है।
जैसे मैं Okay. चिल्ला देता हूँ आई विल पास, सामने से भी भरपूर आवाज आ रही है सर आई विल पास, क्या बात है। सो उससे क्या है ना, एड्रेनलिन रश जो है हमारा बना रहता है लास्ट तक के लिए। सो दिस अच्छा। इज अ कोर थिंग। पहला चीज है उम्मीद, और दूसरा बच्चे कितने ज्यादा, और बच्चों से ही एनर्जी आपको जरूर आती है। आप पूरे दिन खड़े होके पढ़ा लोगे, आप पूरे दिन एकदम चीखते चिल्लाते हुए बढ़िया जोश भरते हुए पढ़ा लोगे, और अगर आपके सामने की क्लास सो रही है, वही एनर्जेटिक हाँ। नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका भी मोरल लो हो जाएगा। और कभी बच्चे जब बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं तो टीचर के अंदर से 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा ही निकलते हैं पढ़ाने के हिसाब से भी। तो कभी भी मेरी एक एडवाइस है कि आप क्लास अटेंड करने जाए तो अपने टीचर के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है जरूर, वो पढ़ाई कराएंगे, आप पढ़ेंगे, पर दोनों के एफर्ट बराबर होने चाहिए, तभी क्लास में एनर्जी बहुत ज्यादा मेंटेन रहती है। ओके। एंड सर अभी जैसे हम लोग का मई में इंटर्नशिप के लिए, मतलब मई 16 मैं यूक्रेन से पढ़ा हूँ, तो मई 16 को तो हमें बुलाया गया है ऑफिस में जहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो उसके बाद आई एम एज्यूमिंग कि 1 महीना लगेगा इंटर्नशिप हम्म, स्टार्ट होते होते। हम्म, तो 1 महीना आपने इंटर्नशिप किया, आप भी एफएमजी है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब समझिए कि मेरा मई जून जून से फिर मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है, जून जुलाई जो भी। तो 1 साल का इंटर्नशिप है, तो फिर मैं अगले साल का, या हम जो भी स्टूडेंट्स हैं फिर वो अगले साल का नीट पीजी दे सकते हैं या फिर उसके नेक्स्ट 2027 का देना होगा? अगर आपकी 1 साल की इंटर्नशिप है हाँ। तो ऐसा एक गाइडलाइन आता है, उसके अंदर प्रॉपर मेंशन रहता है कि जैसे 6-7 महीने हो जाएं तो उसके बाद आप नीट पीजी दे सकते हो। अच्छा। जिनकी 2 साल की इंटर्नशिप है तो उनकी जब 1.5 साल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दे सकते हो। पर प्रॉपर अगर एग्जैक्ट डेट के लिए रेफर करना है तो वो एनबी का जो नोटिस आता है उस पर एग्जैक्ट लिखा होता है, इंटर्नशिप कंप्लीशन आफ्टर दिस आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो मोटा मोटा अगर आप लेके चलिए तो 6 महीने का तो है ही छह है। महीने का रहता है, मतलब ऐसा 12 महीने का नहीं रहता है? नहीं नहीं, 12 महीने, ऑलमोस्ट 50-60% जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप नीट पीजी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो उसके अंदर। ओके। सो दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन। आई होप you guys enjoyed and got some knowledge from sir. Do you want to say something? So keep saying, I will pass. May God bless you all. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. चलो। Yes.